Good morning, everyone, and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 11th में हम कर रहे हैं टॉपिक इलिप्स, कोनिक सेक्शन, जिसका सब पार्ट है इलिप्स। उसका बेसिक्स कल हमने किया था, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 11.3 है हमारे पास इलिप्स। आइए स्टार्ट करते हैं इलिप्स। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद द गिवन कंडीशंस। कंडीशंस क्या है? vertices plus minus 5 and 0 and the foci are plus minus 4 and 0. find the equation of ellipse. ellipse की इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसकी मेजर एक्सिस कौन सी बनेगी और माइनर एक्सिस कौन सी बनेगी। दूसरा, उसके जो कोफिशिएंट्स है a और b वो क्या होंगे, वो दोनों चीजें हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है आपका वर्टेक्स और फोकस जो है वो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं, y एक्सिस कोऑर्डिनेट 0 है, तो x एक्सिस इसकी मेजर एक्सिस होगी। here x axis is the major axis। so इसकी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होगी? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस फॉर्म में इसकी इक्वेशन होगी। for that we need a and b। so here we have, what do we have? vertices are plus minus 5 and 0, and we know that the vertices are generally plus minus a and 0. so on comparing we find a is equals to 5 and the focus, that is foci, is plus minus 4 and 0, and we know that foci are plus minus c and 0. so we have c is equals to 4. now we have to find b. we know in an ellipse c square is always equals to a square plus b square। ये होता है c square is always a square equals to c square plus b square। c square a square equals to c square plus b square। now we will find the b हमें फाइंड करना है। a square means 5 square, c square को इधर लाते हैं minus 4 square is equals to b square। 5 square 25 minus 4 square 16, 9। on solving we find b square is equals to 9 or b is equals to 3। now we have a and b, then the equation of ellipse is x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1। x square upon a square, which is 25, plus y square upon b square, which is 9, is equals to 1। so this is the equation of ellipse। ये बन जाएगी इलिप्स की इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता लगाना कि मेजर एक्सिस कौन सी है, माइनर एक्सिस कौन सी होगी, एंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। उसके लिए आपको ये चीजें सॉल्व करनी होंगी, सिंपलीफाई करनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज the end of major axis are given as plus minus 3 and 0, end of minor axis given as 0 and plus minus 2। find the equation of ellipse। we know that मेजर एक्सिस की लेंथ 2a होती है, तो इसके वर्टेक्स प्लस a और माइनस a means प्लस माइनस a and 0। this implies a is equals to 3। माइनर एक्सिस की लेंथ 2b होती है, प्लस b और माइनस b, है ना। so प्लस माइनस b is the coordinate, that is 0 and plus minus b। this implies b is equals to 2। we have a and b, then equation of ellipse is मेजर एक्सिस इसकी x एक्सिस हो गया, y एक्सिस साफ देखने से पता चल रहा है, ग्रेटर टर्म जो है वो x की तरफ है। इलिप्स में जो ग्रेटर है वो मेजर, जो स्मॉलर है वो माइनर। तो ग्रेटर इसमें कहां है? x कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर, y कोऑर्डिनेट 2 है और x कोऑर्डिनेट 3 है, दिस इज ग्रेटर। सो x एक्सिस इज द मेजर एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो है वो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस विल बी द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स। put up the value of a, which is 3 square is 9
y square upon b square, 2 square is 4 equals to 1. This is the equation of ellipse. It is so simple question, बिल्कुल easy है, कुछ tough नहीं है इसमें. The next question, question number 15, that is find the equation of ellipse with the length of major axis as 26 and the foci are plus minus 2 and 0, plus minus 5 and 0. Now we know that the length of major axis is always equals to 2a. मेजर एक्सिस की लेंथ 2a होती है और माइनर एक्सिस की लेंथ 2b. So 2a equal to 26. This implies we got a equal to 13. a हमारे पास 13 है. And we know that foci are given as plus minus c or and 0. Or sometime in some books it can be written as ae and 0. ये भी कह सकते हैं आप. फोकस को हम यहाँ एनसीईआरटी बुक में सी यूज किया गया नोटेशन, कई बुक्स में इसकी नोटेशन ए ई भी यूज हुई, बिकॉज सी इज इक्वल्स टू ए ई. सी जो है वो ए ई के ही इक्वल होता है. नाउ सो वी हैव हियर सी इज इक्वल्स टू 5. नाउ वी नो दैट इन एन एलिप्स ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है. इन एन एलिप्स ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. We have A and we have C, so we can find B. A square is equals to B square plus C square. On calculating it, we can find B square equal to 13 square, 169 minus 24, or it is 25. It is 144. So we find B is equals to 12. We have B and we have A. Then the equation of ellipse. Equation of ellipse will be in the form of major axis is x-axis or y-axis. Here the focus is on x-axis. इसका जो focus है वो x-axis के ऊपर है, तो major axis will be x-axis. तो equation of will be in the form x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. So we got x square upon a square is 169 plus y square upon b square, which is 12 square, means 144 equals to 1. So this is the equation of ellipse. ये बन जाएगी ellipse की equation. Question number 15. Question 16 भी कुछ ऐसा है, उसमें major axis की जगह पे क्या देखा है, तो minor axis given है उसमें. Length of minor axis is given as 16. जो क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है उसमें मेजर की जगह पे माइनर मींस 2b is equals to 16 given है, so we can find b in that. b is 8. 16 क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो, एंड फोकस उसमें है प्लस माइनस 6 and 0. उसमें जो फोकाई गिवन है दैट इज 0 and प्लस माइनस 6, ये है. we know that it is 0 and plus minus c, so here c is 16, so we can find a. We know that a square equal to b square plus c square ellipse के लिए. So a square equal to 8 square is 64, 6 square is 36, 100. So a कितना हो जाएगा 10. Now we have a and we have b. We can find the equation. But remember standard form दो है हमारे पास, x एक्सिस को मेजर एक्सिस लेके या y को मेजर लेके. इसमें मेजर कौन सी बनेगी वो ध्यान रखना जरूरी है. Here the major axis will be y-axis because focus is on y-axis. Equation will be x square upon b square, y square upon a square. It is equals to 1. This will be the equation of ellipse. ये बनेगी इसकी equation. ठीक है. We are going to the next question and that is question number 19. Exercise 11.3, 19th question is find the equation of ellipse when the center is given at origin and y-axis as the major axis. It is given that the ellipse passes through these 2 points. This time no focus, no vertex, no A, no B, no C, कुछ भी given नहीं है. हमें सिर्फ 2 points given हैं ellipse के. We have to find the equation. So let us suppose let equation of ellipse be major axis y axis लिखी है ना, तो let equation of ellipse be x square upon b square plus y square upon a square is equals to 1.
Let us suppose this is the equation of ellipse. क्योंकि y मेजर लिखी है तो y के डिवाइड में हम a स्केल लेते हैं. Now we will find a and b. As put these points in equation. Put 3 2 and 1 6 in equation number 1. Why? Because given that ellipse passes through these 2 points. Ellipse इन पॉइंट में से पास होता है तो ये पॉइंट इलिप्स के ऊपर लाई करेंगे और जब पॉइंट इलिप्स के ऊपर लाई करेंगे तो वो इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. Let us put these points. So this implies x square is 3 square means 9 upon b square plus y is 2 square is 4 upon a square is equals to 1. Let us suppose this is equation number 2 and second point 1 6 1 upon b square plus 6 का square 36 upon a square is equals to 1. Let us suppose this is equation number 3. Now solve equation 2 and 3. Solve equation 2 and 3. Let us multiply the equation number 2 by equation number 1 को 2 को कर लेते हैं हम किससे multiply 9 से. Equation number 2 multiply by 9 we got 81 upon b square plus 9 से करेंगे 36 upon a square equals to 9 and equation number 3 multiply by 1 we got it is 1 upon b square plus 36 upon a square equal to 1. On subtracting this minus 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 this will got cancelled. 81 upon b square minus 1 upon b square we got it is 80 upon b square is equals to 9 minus 1 it is 8. On cross multiply b square equal to 80 upon 8 which is 10. b square की वैल्यू आ गई and put this value of b square put in equation number 1 equation number 3 या 2 में से किसी में पुट करते हैं हम 3 में पुट कर लेते हैं तो 1 upon b square is 10 plus 36 upon a square is equals to 1. Taking this on the right side 36 upon a square equals to 1 minus 1 by 10. Taking LCM it is 9 by 10. 36 upon a square is equals to 9 upon 10. Taking the reciprocal इनका हम कर लेते हैं reciprocal. रेसिप्रोकल करें तो a स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 10 अपॉन 9 और इस 36 को ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड. दिस इंप्लाइज a स्क्वायर इक्वल टू 10 अपॉन 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 ये कैंसिल 4 पे तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 40. पुट दिस वैल्यू ऑफ a स्क्वायर एंड b स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1. पुट a स्क्वायर एंड b square in equation number 1. So we get equation of ellipse is ellipse की equation क्या बन जाएगी x square upon b square. What is b square? b square is 10 plus y square upon a square and what is a square? It is 40 equals to 1. This is the equation of ellipse. ये बन जाएगी हमारा फाइनल आंसर इक्वेशन ऑफ ellipse. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19. 20th क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है उसमें बस मेजर एक्सिस जो है वो x एक्सिस है लिखा है मेजर एक्सिस इज x एक्सिस और उसमें भी 2 पॉइंट गिवन है. सो वी कैन फाइंड दैट आल्सो क्वेश्चन को उसको भी हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 11.3 व्हिच इज अबाउट इलिप्स. इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हाइपरबोला. हाइपरबोला के बारे में पढ़ते हैं. हमने सर्कल पढ़ा पैराबोला पढ़ा इलिप्स पढ़ा अब नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरबोला. बट ये सब सारा स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमने कोन के बारे में पढ़ा था. कोनिक सेक्शन क्या है. जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया तो कोनिक सेक्शन पढ़ा था. कोनिक सेक्शन क्या था किसी एक एक्सिस को हम एक पॉइंट को फिक्स करते हुए उसको इसके चारों ओर जब रोटेट करते हैं देन वी गॉट ए डबल कोन. इस तरह से हमें एक डबल कोन मिलता है. ये उसकी एक्सिस है जिसके चारों ओर इसको रोटेट किया गया है. दिस इज द एक्सिस. दिस इज द एक्सिस. इस एक्सिस के चारों ओर इसको रोटेट किया गया था. वी गॉट ए डबल कोन. अब सर्कल कैसे बना था. इस डबल कोन को या सिंगल कोन को जब हम इसका बेस ये है इसका बेस
इसके बेस के पैरेलल जब हम कट करते हैं तो जो पार्ट इसका फेस जो कटेगा, बेस के पैरेलल जब हम इसको कट करेंगे, कट करने पर इसका जो फेस दिखेगा दैट विल बी ए सर्कल। ठीक है। दूसरा हमने किया था, अगर इसको फ्लैट कट करके बेस के पैरेलल नहीं थोड़ा सा रोटेट करके कट करते हैं, तब जो इसका पार्ट कट के आएगा उसको अगर हम फेस ऊपर फेस देखेंगे दैट विल बी एन इलिप्टिकल, वो एक इलिप्स होगा। उसके बाद हमने तीसरा टॉपिक डिस्कस किया था, जब इसको इस तरह से कट करेंगे इसके पैरेलल हो जाएंगे, इस जनरेटर लाइन के पैरेलल बिल्कुल कट करेंगे, देन इट विल कट इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। ठीक है। सिंगल कोन को कट करता है सर्कल बेस के पैरेलल, थोड़ा सा टर्न करके कट करते हैं इलिप्स, और टर्न करते हैं इसके पैरेलल बन जाए, यहां से इस तरह से कट करेंगे इसके पैरेलल बने, तब हमारा जो फेस कट के आएगा दैट विल बी पैराबोला। उसके बाद इसको और ज्यादा रोटेट कर दे, इतना रोटेट कि ये सिंगल फेस को कट ना करके दोनों कोन को कट करना स्टार्ट कर दे। इसको इतना रोटेट करते हैं कि ये इस तरह से इसके दोनों के दोनों कोन को कट करेगा, दोनों नोड्स को कट करना स्टार्ट कर दे, then the shape which is cut out will be in the form of hyperbola। अब जो शेप इसकी कट के आएगी that will be hyperbolic curve। एक ही लाइन इसके दोनों कोन को कट करेगी, दोनों तरफ से कट करेगी। अब जो कोन का जो पार्ट कट के आता है वो एक हाइपरबोलिक कर्व होता है। अब इसकी हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। हाइपरबोला कांस्टेंट होता है, इतना चेंज है, सम की जगह पे अब आ गया है डिफरेंस, बाकी अप्रोक्सीमेट लगभग वही चीजें हैं सारी हमारे पास है। हाइपरबोला, हाइपरबोला जो है वो इलिप्स के ही तरह से चलेंगी सारी चीजें, शेप चेंज है, इक्वेशन चेंज है, बट पैटर्न वही होगा। हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या होगी? द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन सच ए वे, किसी एक पॉइंट का ऐसा लोकस इन सच ए वे दैट इट्स डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। इलिप्स में था सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, इसमें है डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट। ये दोनों फिक्स पॉइंट है, इन दोनों फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस का डिफरेंस, दिस डिस्टेंस f1p और f2p डिस्टेंस का डिफरेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। वो पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी, दोनों तरफ हो सकता है। ठीक है। डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, इन दोनों फिक्स पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है उनका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इलिप्स में दोनों डिस्टेंसेस का सम था, इस बार दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस है जो कि कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। इसमें भी वही दो चीजें हैं, फोकस f1 f2, दो फोकस दो वर्टेक्स, एक यहां होगा और एक यहां होगा, ये भी वर्टेक्स होगा इसमें, टू वर्टेक्स। ठीक है। ये सेंटर है, इसमें एक्सिस के नाम चेंज हो गए हैं। इलिप्स में हमारे पास मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस थे, नाउ वी आर यूजिंग द ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। फोकस का कोऑर्डिनेट वही प्लस माइनस c और 0 था, तो ये माइनस c एंड 0, दिस इज प्लस c एंड 0। वर्टेक्स दिस इज माइनस a एंड 0 एंड दिस इज प्लस a एंड 0, प्लस a एंड 0। ठीक है। तो अपने पास इसमें वही फोकस दो होंगे, इसके फोकस माइनस एंड प्लस c एंड 0, वर्टिसेस वही दो वर्टिसेस प्लस एंड माइनस a एंड 0, सेंटर इसका ओरिजिन है, सेंटर है इसका ओरिजिन। ठीक है। ओरिजिन यानी कि 0 0 है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, सेम उसी पैटर्न पे चलेगी। एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी उसी तरह से आ जाएगा, इसमें भी एसेंट्रिसिटी की वैल्यू, बट इसमें एसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर होती है। इलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी 1 से लेस होती थी, हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल है, सॉरी पैराबोला में एसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल है, और हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर होती है। इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, ये हो जाएगा हमारे पास। एसेंट्रिसिटी c अपॉन a, एसेंट्रिसिटी अगेन दैट इज c अपॉन a रहेगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज 2b स्क्वायर अपॉन a,
उसके बाद इसमें एक रिलेशनशिप चेंज है। इलिप्स के लिए अपने पास a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर था। y एसेंट्रिसिटी 1 से कम होती थी। अब एसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा है तो c की वैल्यू भी ज्यादा होगी। c की वैल्यू किसके इक्वल है? a इंटू e के इक्वल है ना। जब एसेंट्रिसिटी 1 से कम होगी तो c की वैल्यू a से कम होगी। एसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा है तो c की वैल्यू a से ज्यादा है। हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा है, c की वैल्यू a से ज्यादा होगी, और a से ज्यादा होगी तो रिलेशन भी चेंज होगा। c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा। इसमें रिलेशनशिप जो है वो चेंज हो जाएगा। c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इलिप्स के लिए ये रिलेशनशिप ऐसे थी, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर था, ये इलिप्स के लिए थी रिलेशनशिप। अब हाइपरबोला में ये रिलेशनशिप इसकी चेंज हो जाएगी, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इन सारी चीजों में एक चीज हमारे पास शुरू से मिस हो रही है, जो इस बुक में गिवन ही नहीं है, कहीं पे उसका जिक्र ही नहीं किया, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स ना तो इलिप्स में यूज हुई है कहीं पे, ना हाइपरबोला में। तो चलो डायरेक्ट्रिक्स 4 बता देते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी इसमें? प्लस माइनस a अपॉन e बनेगी, दैट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अगर आपकी इलिप्स के केस में x मेजर एक्सिस है तो x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e, y मेजर एक्सिस है तो y इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इलिप्स के केस में ये बनेगी, जो मेजर है वही आ जाएगी। इसी तरह हाइपरबोला में जो ट्रांसवर्स है उसी में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी, x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e, y इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। ट्रांसफर जो होगी, ट्रांसफर कौन सी है? x, तो डायरेक्ट्रिक्स x में आएगी। ट्रांसफर y है तो डायरेक्ट्रिक्स y में आएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बुक में कहीं पे भी ना तो इलिप्स में यूज हुआ है और ना ही हाइपरबोला में। डायरेक्ट्रिक्स पूछी जा सकती है एग्जाम में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो आप याद रखो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन a अपॉन e बनेगी, x इक्वल टू a अपॉन e या y इक्वल टू a अपॉन e, डिपेंडिंग अपॉन द मेजर एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस। अगर इलिप्स है तो मेजर एक्सिस, हाइपरबोला है तो ट्रांसवर्स एक्सिस। एसेंट्रिसिटी c अपॉन a हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपने पास सेंटर, ओरिजिन है, वर्टेक्स है, फोकस है, लेटस रेक्टम, ये सारी चीजें हैं। बाकी सारी चीजें अप्रोक्स लगभग इलिप्स की तरह से है। अब इसमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो है वो इलिप्स से थोड़ी सी चेंज है। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, या तो ये बनेगी, और y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इन दोनों में से एक बनेगी, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसवर्स एक्सिस। इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी वो पॉजिटिव होगी, कॉन्जुगेट एक्सिस नेगेटिव होगी। इलिप्स में और हाइपरबोला में कंपैरिजन, अगर हम सिंपल से सिंपल कंपैरिजन करना चाहें तो एक खास डिफरेंस है। इलिप्स में मेजर एक्सिस जो है वो ग्रेटर वाली होती थी, ठीक है, स्मॉलर वाली माइनर होती थी। इसमें नाम तो चेंज है ही है, मेजर को हम ट्रांसवर्स और माइनर को हम कॉन्जुगेट यूज करते हैं, वो तो चेंज है ही है, बट साथ में यहां भी चेंज है। ठीक है, यहां ग्रेटर और स्मॉलर नहीं देखा जाएगा। पॉजिटिव वाली जो है वो ट्रांसवर्स बनेगी, नेगेटिव वाली जो है वो कॉन्जुगेट बनेगी, ध्यान रहे। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे हम यहाँ पे, नॉट ग्रेटर एंड लेसर। इलिप्स के केस में जो ग्रेटर थी वो मेजर थी, जो स्मॉलर थी वो माइनर थी। यहाँ जो पॉजिटिव है वो ट्रांसवर्स, जो नेगेटिव है वो कॉन्जुगेट। सो दिस आर द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, और ये उसकी सिचुएशंस हैं डिफरेंट, क्या क्या होंगी, फोकस क्या है, वर्टेक्स क्या है, सेंटर क्या है, ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स 2a, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट 2b, लाइक इलिप्स लेंथ ऑफ मेजर 2a, लेंथ ऑफ माइनर 2b थी, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स 2a, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट 2b, सेम पैटर्न से चलेगा। तो अप्रोक्स लगभग सेम है। ये इसका जो बेसिक्स है हम यहाँ तक आज करते हैं। जो नेक्स्ट डे होगा हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। यस बाय सर।